So dear students, in the last class we tried to have a look at the crystalline solids, the types of crystalline solid. In the types of crystalline solid, the very first type we saw was the molecular crystalline solid. From the name itself, okay, it is very clear. Molecular crystalline solids, molecular, that means they are consisting of molecules. Constituent particles कौन होंगे? Molecules होंगे. Crystalline, okay, तो crystalline से हमें पूरा प्रॉपर्टी समझता है कि वो crystalline solids हैं, right? Now molecules कितने टाइप के होते हैं? Sir, we have non-polar molecules, we have polar molecules, and we have hydrogen bonded molecules. That means polar molecules जिसमें hydrogen bonding possible होगा. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम लोगों को मिल गया कौन कौन से टाइप? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ओके, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड एज वेल एज हम लोगों को मिल गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. आई होप सबको ये समझ में आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next to that, we saw ionic crystalline solids. Now, what are these ionic crystalline solids? It is very clear from the name that ionic crystalline solids have constituent particles as ions. And जैसे ही हम लोग देखेंगे that we are having ions, that surely tells us that ion के बीच में जो attraction force होगा या जो repulsion force होगा, जो interaction होगा, उसे हम लोग electrostatic force बोलते हैं. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? Electrostatic force बोलते हैं. So we know that the electrostatic force is again a strong force. The electrostatic force is again a very strong force. हम लोग फिजिक्स में अभी अभी आप लोग पढ़े होंगे that the electrostatic force due to electrostatic charges is almost 10 to the power of 38 times that of your force due to gravity. That means अगर मैं एक प्रोटॉन और एक और प्रोटॉन ले लेता हूं, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, और इन दोनों के बीच में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, इन दोनों में डिफरेंस मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलमोस्ट 10 to the power 38 टाइम्स लार्जर है सर. तुम सोच सकते हो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कितने स्ट्रांग होते हैं. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, moving ahead. Yesterday I tried to explain you people something. What is that? The ionic solids, ionic crystalline solids are made up of ions. The attraction force between them is electrostatic force of attraction. As it is a very strong attraction force, they have very high melting and boiling points. They have very high melting points especially. And we tried to explain you one more thing. What is that? We tried to say you that in solid phase, they do not conduct electricity and heat. Okay, in solid phase, your ionic solids do not conduct your electricity and as well as heat. तो उसके पीछे रीजन क्या बताएंगे हम लोग? सर, इन द सॉलिड फेज देयर आर नो फ्री आयंस और देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स which can transfer the heat or which can transfer the electricity. Okay, so that is the reason in the solid phase हमारा ionic solids जो है they will not conduct heat and electricity. But जैसे ही हम लोग इसको aqueous phase में ले लेंगे, if we take it in an aqueous phase, what will happen is ionic solids will immediately dissociate. For example, मैंने MgCl2 ले लिया, say for example, MgCl2 in aqueous phase will immediately dissociate into Mg2 plus and it will give you Cl minus. तो ये जो Mg2 plus और Cl minus है, ये फ्री चार्जेस हैं. मतलब ये चार्जेस आराम से मूव कर सकते हैं इनसाइड द लिक्विड. दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड फेज और इन द एक्वस फेज
but not in the solid phase. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Nice. Now let us move ahead. Now let us move ahead. The next important class of solids which we are going to see are metallic crystalline solids. ओके तो नाम देखते ही हमें क्या समझ में आ रहा है? मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा? Sir, metals. वेरी Positive गुड. ion. metals, मेटल्स व्हाई आयंस? आयंस तो ऑलरेडी आयनिक सॉलिड्स में खत्म. नाउ मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नाम से ही हमें पता चल जा रहा है दैट दे आर गोइंग टू बी मेटल्स. that they are going to be metals. Very clear. Okay, चलो अब सर एक मेटल दूसरा मेटल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो याद कीजिए, यस मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताया हूं, इनके बीच में रहता है आप लोगों का मेटेलिक बॉन्ड. ओके सो मेटल मेटल के बीच में एक्चुअल में होता है मेटेलिक बॉन्ड. एंड हाउ इज दिस मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्टिंग? कैसे होता है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स? देखो, a group of elements, that is a group of metals will come together. इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन. ओके, ग्रुप ऑफ मेटल्स विल कम टुगेदर और ये क्या करेंगे? अपना अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको ये लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में दे देते हैं. दैट मीन्स ये ग्रुप के बाहर में, वो ग्रुप के बाहर में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे रोटेट करते रहेंगे इस ग्रुप के बाहर में. ओके जैसे ये क्या है सर? ये ऐसे मेटल्स ऐसे क्यों करते हैं? देखो, मेटल्स जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना के अपने चारों तरफ रोटेट होता है, देन ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन करते हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. आ रहा है समझ में? यस सर. इनके पास सर ज्यादा फ्री sir. इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. यस, मेटल्स के पास, बिकॉज मेटल्स आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स. इनके वैलेंस बैंड में हम लोगों को पता है ना, 10th में भी हम लोग पढ़े हैं, 11th में भी हम लोग पढ़े हैं दैट मेटल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. Metals are nothing but electropositive elements. That means they have the tendency in order to lose electrons. तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली छोड़ पा रहे हैं. ओके तो ध्यान देंगे इसके बारे में, अच्छे से देखेंगे. ओके श्वेता लिन बोलती है फिर से बता दीजिए. तो चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं. ठीक है, देखिए से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी मेटल्स में ड्रॉ कर रहा हूं ये सब हम लोग हैं. सी दिस इज यू. Okay, this is one more guy, this is one more guy, this is me, this is one more fellow, this is one more fellow, one more fellow, one more fellow, one more fellow. We all live in a particular village, say for example. And हम लोग में से किसी एक के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग एक बड़ा सा इंडस्ट्री सेटअप कर ले. लेकिन मैं थोड़ा डोनेट किया, तुमने थोड़ा डोनेट किया, तुमने थोड़ा डोनेट किया, तुमने थोड़ा, तुमने थोड़ा, ऐसे हमारे पास जितना भी पैसा है वो सब हम लोगों ने डोनेट कर दिया. तो हम लोग सब मिलके एक इंडस्ट्री पक्का सेटअप कर सकते हैं. राइट? तो अब ये सोचो, हम लोगों ने सब अपना अपना पैसा इस इंडस्ट्री के लिए दे दिया. तो जब तक ये इंडस्ट्री है, ओके क्या होगा? हम लोग सब के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अच्छे से रहेगा. बिकॉज देखो, अरे बाप रे, मैं अगर इन लोगों के साथ झगड़ा करूंगा तो मुझे झगड़ा करके इस इंडस्ट्री से बाहर जाना पड़ेगा. तो मैंने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया है, तो ऑब्वियसली मैं इतना जल्दी झगड़ा नहीं करूंगा. सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग. व्हाट विल हैपन इज ये मेटल 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 जो ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिए हैं, they will have a strong bond between themselves. They will have a strong attraction among themselves, which we call it as nothing but our metallic bond. क्या ये बात अभी समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. ओके नेक्स्ट चीज देखो तो सर, बंदिता हमें बोल रही है कि सर तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे क्या? तो ऑब्वियस सा बात है, जहां पे भी मूविंग चार्जेस होंगे
वहां मैग्नेटिक कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा। जहां पे चार्जेस एट रेस्ट है वहां पे ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहेगा। अभी तो आप लोग फिजिक्स में ये भी पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गोइंग टू एग्जिस्ट अराउंड चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे, Q by epsilon नॉट निकाले हैं आप लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी? नो सर, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट नहीं Coulomb's हुआ है। ओके ओके ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे, तो फिजिक्स में देखेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड ऑल। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या समझना है? अभी आप लोगों को ये सर समझना है सर, हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक रहने से सर आयन फ्री नहीं होते क्या सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या नहीं रहने से? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहने से आयन्स फ्री नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहने से आयन्स मतलब अगर वो फिक्स्ड आयन्स नहीं है तो जिस फील्ड के हिसाब से, फील्ड किस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके विल ऑलवेज ट्राई, तो अगर हमारे पास चार्जेस लाइक चार्जेस हैं देन दे विल रिपल ईच अदर, एंड इफ दे आर अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो वो फ्री रहते हैं नहीं रहते हैं ऐसा कुछ हम लोग रिलेट नहीं करते उसके साथ। चलिए यहां पे आप लोगों को क्या समझना है? सर व्हेन ए ग्रुप ऑफ मेटल्स कम टुगेदर व्हाट दे विल डू इज they will try to donate their electrons to the sea of electrons. Now these electrons will be rotating throughout this group, okay, जिसके वजह से all these metals will be bound together very strongly. तो अगर कोई पूछेगा सर तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटेलिक बॉन्ड है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? then the answer is yes, and yes they have high melting and boiling point. even our मेटेलिक बॉन्ड वाले एलिमेंट्स जो हैं ये भी बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा? मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ कब कम होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? अब तुम लोग सोचो, इस ग्रुप में मैं हूं जो कि मैंने इस इंडस्ट्री के लिए सिर्फ 10 रुपए डोनेट किया, तो मुझे इस ग्रुप वालों से झगड़ा करके बाहर निकलने में बहुत ही आसान होगा, यस और नो? बिकॉज माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी लेस। Yes, sir. हाँ, तो हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय एन एलिमेंट विल डिसाइड इट्स मेटेलिक स्ट्रेंथ। ओके, मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ यहां पे बता देता हूं, देखो। स्ट्रेंथ ऑफ metallic bond is directly proportional to number of electrons donated to sea of electrons. ये जो sea of electrons है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ मूव कर रहे हैं ये ग्रुप के चारों तरफ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो सर सोडियम एक सॉफ्ट मेटल क्यों है? Let us see. Sir, sodium is a soft metal because sodium donates only one electron to its sea of electrons. तो 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ डोनेट करता है, मींस ऑब्वियस सा बात है इसका मेटेलिक बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा वीक होगा। बट उसी केस में तुम आयरन के पास आ जाते हो, इट डोनेट्स ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स वैलेंस शेल, तो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन्स जो ये डोनेट कर रहा है इसके चारों तरफ एक ग्रुप ऑफ आयरन मेटल्स के तरफ, तो इनका मेटेलिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. सर So what I have tried to tell you is, sir, the strength of the metallic bond is directly proportional to the number of electrons donated to the sea of electron. जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, उतना ज्यादा उनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। मतलब अगर मैंने अभी तुम लोगों को बता दिया, इफ आई टोल्ड यू समथिंग लाइक दिस, tell me students, arrange the following elements in the
increasing order of, arrange the following elements in the increasing order of their metallic bond strength. मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, वहां पे मैंने दे दिया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैंने दे दिया लिथियम। मैंने बोला इन्हें अरेंज करने के लिए। मुझे तनुश्री पूछ रही है सर सॉफ्ट मेटल मतलब, सॉफ्ट मेटल्स मतलब दोज मेटल्स व्हिच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। ओके, उनको हम लोग आराम से एक नाइफ लेके हम लोग काट सकते हैं। क्या आप लोगों को याद है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, सोडियम मेटल को हम लोग ने सिर्फ अपना जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उससे भी काट दिए थे हम लोग, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is nothing but a soft metal, something which can be easily cut. तो अब बताओ इसका आंसर आप लोग, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड लिथियम, इनको अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना चाहता हूं तो मैं कैसे अरेंज करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में? पहले लिथियम होगा, पहले लिथियम होगा, वेरी गुड। बाद मैग्नीशियम, बाद में मैग्नीशियम, बाद में एल्यूमिनियम और आयरन। वेरी गुड सर। सो सिंपली हम लोगों को क्या देखना था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जनरली ये किसके लिए देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सर, मेटल्स के लिए, बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड जो है वो सिर्फ मेटल्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो सिंपली बाय सीइंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेलिक बॉन्ड वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। सो दैट इज व्हाई बहुत ही क्लियरली हमें पता चल गया दैट लिथियम का सबसे कम बॉन्ड लेंथ मींस मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा एंड देन फिर तुम्हारा आयरन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। नाउ Yes, sir. वंस दैट हम लोग ये समझ गए, अब तुम लोग बताओ मुझे मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल दे बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? फिर गुड कंडीशन ज्यादा Conductor. Good conductors. they are Good conductor. very good conductors of heat and electricity, not only good, very very good conductors of heat and electricity. Now why is that? Because of the presence of free electron. electrons. Very good beta, very good. So because of the presence of फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो मेटल 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 का जो ग्रुप बना हमारे पास, इस ग्रुप के चारों तरफ जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, इनको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा दैट सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं अभी एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, अभी फिजिक्स में तुम लोग सीखोगे राइट सर, मेरे पास अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल मैंने लगा दिया, दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने से ऑब्वियसली वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो ध्रुव कुछ पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या सर? ऑब्वियस स्टेट है, इवन इन द सॉलिड, इवन इन द मोल्टन स्टेट दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मोल्टन स्टेट में भी इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बरकरार रहते हैं, दैट मींस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे का वैसे रहते हैं। सो ऑब्वियस सा बात है, इवन इन द मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बात समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, हैव अ क्लोजर लुक। सर ये कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स क्या है? तो देखिए हम लोग अब तक क्या क्या देख लिए सर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देख लिए, पोलर मॉलिक्यूल्स देख लिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स देख लिए, ओके हम लोग आयॉन्स देख लिए, Na+, Cl-, ऐसा सॉलिड्स भी देख लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम लोग मेटल्स भी देख लिए, मेटल मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। अब जो बच गया है वो है लार्ज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। लार्ज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, याद रखना
नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब छोटा छोटा मॉलिक्यूल। ये जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स हैं ये है लार्ज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे इनका मॉलिक्यूल का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। देखते हैं कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। हैव अ लुक। से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक कार्बन, हमें पता है दैट ईच कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? यस सर। तो Yes, याद कीजिए Yes, sir. 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे दैट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट ईच कार्बन एटम, okay, in the structure of graphite we have seen that each carbon atom is attached directly with 3 other carbon atoms। देखे हैं कि नहीं? हाँ yes, सर। sir. In Yes, the sir. same way, every single carbon atom is attached with 3 other carbon atoms। तो चलिए ज्वाइन करते जाते हैं। हर कार्बन एटम को हम लोग 3-3 कार्बन एटम के साथ जोड़ेंगे, हर कार्बन एटम को हम लोग 3-3 कार्बन एटम के साथ जोड़ेंगे, हर कार्बन एटम को 3-3 कार्बन एटम के साथ हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम लोगों को एक लार्ज नेटवर्क मिल रहा है। किसका? कार्बन 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 का एक बड़ा सा चेन, एक बड़ा सा नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं सर? Yes, इस sir. तरीके से, Yes, राइट। sir. यस सर। सो ये जो लार्ज नेटवर्क है हमारे कार्बन 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 का, ओके, ये अगर एक 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 लेयर मिलके एक बड़ा सा सॉलिड बनाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा एटम या एक छोटा मॉलिक्यूल नहीं होता है, यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स जहाँ पे एटम्स एक दूसरे के साथ लार्जली connected रहते हैं। Okay, so such type of molecules we will call them as nothing but such type of solids we will call them as covalent network solids। तो number 1, what are the constituent particles? Okay sir, covalent network solids constituent particles are giant molecules, large molecules, number 1। Number 2, what is the type of attraction force between them? Sir, covalent bond। एक के दूसरे के बीच में कौन सा बॉन्ड है सर? कोवेलेंट बॉन्ड। सो अट्रैक्शन फोर्स इज सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड। एग्री कर रहे हो? Yes, 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 sir. sir. ओके, नेक्स्ट सर, अगर कोवेलेंट बॉन्ड रहता है एक एक दूसरे के बॉन्ड के बीच में तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जनरली हाई ही होता है, बढ़िया। जनरली हाई ही होता है, बिकॉज तुम्हें अगर इसे मेल्ट करना है या कुछ करना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, बिकॉज एक 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 मॉलिक्यूल को तुम्हें, एक एक बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। क्या दीपक बाबू डिस्कनेक्ट क्यों हो गए थे या अभी ज्वाइन किए हैं? क्या हुआ? तो जो भी बोल रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, छोड़ो, ठीक है। तो क्या होता है सर, हम लोगों को इन मॉलिक्यूल्स को जो है इसे ब्रेक करके इसे गैसियस फेज या लिक्विड फेज में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन आता है सर, आर दे कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी? ये डिपेंड करता है कंप्लीटली उनके स्ट्रक्चर पे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जो हम लोग ड्रॉ किए ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है सर? सर ग्रेफाइट में छोटा 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 ऐसे एक 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 इलेक्ट्रॉन बच गया है, बिकॉज हर एक कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, उसका 4th इलेक्ट्रॉन तो नीचे फ्री बच गया। हर एक कार्बन जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, उसका 4th इलेक्ट्रॉन तो नीचे बच गया, 4th इलेक्ट्रॉन नीचे बच गया, 4th इलेक्ट्रॉन नीचे बच गया। तो ग्रेफाइट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. बट sir. बट यही अगर मैं डायमंड का स्ट्रक्चर देखूंगा तो देखिए, तो डायमंड में every carbon atom is attached directly with 4 other carbon atoms in a nice tetrahedral geometry। Okay, in a nice tetrahedral geometry every carbon is attached with 4 other carbon atoms।
ओके, इस ज्योमेट्री के वजह से कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाता है सर, हर एक कार्बन एटम स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑक्टेट फुलफिल हो गया और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डायमंड इज अ इंसुलेटर। डायमंड इज व्हाट सर, इज एन इंसुलेटर। तो देखिए सेम कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में डायमंड देखे हम लोग जो कि इंसुलेटर है, ग्रेफाइट देखे जो कि कंडक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, वो हम लोगों को मॉलिक्यूल देख के बताना पड़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि वो कंडक्टर होगा कि नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, in this way we have completed all the different types of your crystalline solids. So we saw molecular crystalline solids जिसमें 3 types देखे, non-polar, polar, hydrogen bonded. We saw ionic crystalline solids, we saw metallic crystalline solids, and then finally we saw covalent network crystalline solids. Covalent network crystalline solids. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोगों को ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का एग्जांपल्स दिया हुआ है, मींस डायग्राम्स दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी ड्रॉ करने की कोशिश किया था। ठीक है, चलिए नाउ after this what we are having is in our textbook we are having a simple thing over here, have a look, type of solid और उनका एग्जांपल्स दिया हुआ है। जैसा हम लोग पढ़े हैं वैसे ही दिया हुआ है सर, ध्यान से देखिए। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स बोल दिए। टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स फर्स्ट वाले में हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस या लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस बोले। एग्जांपल्स में देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फिजिकल नेचर ये जनरली थोड़ा सॉफ्ट होते हैं बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स काफी वीक है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पूरा पूरी इंसुलेटर है ये, लेकिन बिकॉज बिल्कुल भी ये क्या नहीं करते हैं सर, कंडक्ट नहीं करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, वेरी लो। ओके, वेयर एज पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जांपल्स दे दिया, ये भी सॉफ्ट है और ये भी इंसुलेटर्स हैं, इनका लो। हाइड्रोजन बॉन्डेड में लो, बट वेरी लो, लो एंड अ लिटिल हाई। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला पोलर मॉलिक्यूल से भी थोड़ा हायर रहेगा। नेक्स्ट देखो आयनिक सॉलिड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस। अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। एग्जांपल्स दे दिया, हार्ड एंड ब्रिटल। नाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटल? Sir, non-breakable. Non-breakable. No, 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 not at all. Brittle means they can easily Turn break. into heat. Oh. They no, they will immediately turn into powder, chalk piece। और तुम्हारा कुछ है ना, ये ब्रिटल है, चौक तो एमरफस हो गया, सॉरी, ये है ब्रिटल, मतलब समथिंग विच कैन ब्रेक। ओके, तुम लोग जो बोल रहे हो वो मिलिएबल है, मिलिएबल, डक्टाइल, वो सब। ब्रिटल, ब्रिटल मींस हार्ड एंड ब्रिटल। वो ऐसे हाथ से जोर से ऐसे ये कर दोगे तो वो टूट जाएगा, वो ब्रिटल होता है। नेक्स्ट, ग्लास ब्रिटल होता है सर, ग्लास को तुम हथौड़ा लेके मार दो, टूट के छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रिटल। नेक्स्ट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, आयनिक सॉलिड्स हैं। ओके, मेटेलिक सॉलिड्स पॉजिटिव और एल्स नेगेटिव आयंस होते हैं, या सॉरी पॉजिटिव आयंस या मेटल्स होते हैं जनरली, ओके, विच आर हैविंग अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। एग्जाम्पल में कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये हार्ड होते हैं लेकिन ये मिलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। समझो, इनको हम लोग बीट करके एक शीट बना सकते हैं या फिर वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, बट आयनिक सॉलिड्स को वैसे नहीं कर सकते हैं। ये कंडक्टर्स हैं, फेयरली हाई, मतलब आयनिक सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स कंपेयर करेंगे तो मेटेलिक सॉलिड्स हाई है, बट आयनिक सॉलिड्स बहुत ही ज्यादा हाई हैं। समझ में आ गया सर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. No, sir. ओके, चलिए, जो पढ़े हैं वही चीज दिया हुआ है सर, कुछ अलग नहीं है। आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने बोला, क्या बोला, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है जिसका सब यूनिट, मतलब सिंगल यूनिट क्या है, एटम है। फाइनली ये लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे बना हुआ, एक एटम से बना हुआ है। तो और वो एटम कौन है,
कार्बन का एटम से बना हुआ था, तो सिंपली इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम बोलेंगे। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड, इनका एग्जांपल्स क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, ये हार्ड है। ओके, कुछ कुछ होते हैं जो सॉफ्ट है, जैसे कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, बाकी सब इंसुलेटर्स होते हैं, और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई होता है। क्या अब आप लोगों को ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्योंकि समझ में आया, क्या हम लोग कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस कर लें? फटाफट कर लेते हैं। Yes, sir. चलिए, इंटेक्स 1.5, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम। नंबर 1, पोटेशियम सल्फेट। क्या लग रहा है आप लोगों को? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड लग रहा है कि नहीं? पोटेशियम सल्फेट, K+SO4 2-, लग रहा है कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस। नेक्स्ट, टिन, SN, मेटल है टिन, तो क्या लिखेंगे? Metal. मेटेलिक Metallic क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेरी गुड। नेक्स्ट, बेंजीन, Sir, ये covalent होगा. C6H6, बेंजीन। नहीं, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड नहीं होगा, बेंजीन सिंपली हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, बेंजीन एक मॉलिक्यूल है C6H6, कोई पोलैरिटी नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो ये क्या लिख दूंगा मैं? नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख दूंगा। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, यूरिया। यूरिया क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, तो Covalent. यूरिया क्या हुआ बेटा? Covalent. Sir, covalent होगा sir. नहीं बेटा नहीं, आप लोग बहुत गलत फहमी में हैं। पोलर Polar molecule. पोलर, हाँ, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होने के लिए मैंने बोला लार्ज मॉलिक्यूल होना चाहिए, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कभी भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, एमोनिया, ये क्या है? Sir, polar molecules हैं उसे. पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, वाटर, Sir, वो hydrogen bonded होगा sir. वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट, जिंक सल्फाइड, ZnS, Ionic होगा sir. आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेरी गुड। बाकी लोग भी समझ रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सुशांत बाबू समझ रहे हैं कि नहीं? एक और बार बुलाऊंगा, सुशांत आंसर किया बच जाएगा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, हूँ सर। हाँ, सो रहा है? हाँ सर, नहीं सर। हाँ, ठीक है, बच गया। जिंक सल्फाइड, इसमें कैटायन एंड एनायन है, इसीलिए आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट, रुबिडियम, बताओ क्या होगा? Sir, metallic solid होगा. वेरी गुड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आर्गन, Sir, ये non-polar molecules हैं sir. Argon. ओके, ये क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी एग्जाम्पल में दे दिया गया था, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको ध्यान से देखो, ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है, बिकॉज सिलिकॉन 1 2 3 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बाइड C2 2-, तो ये क्या करेगा? ये आएगा यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा एक और, तो ये एक बड़ा सा नेटवर्क बनाएगा, डबल बॉन्ड C, ऐसे पूरा नेटवर्क बनाएगा बड़ा सा। तो इसीलिए सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। क्या सब लोगों को क्लियर है ये वाला एग्जांपल? Yes, sir. Yes sir. Yes, 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 sir. yes. ओके बेटा, चलो नाउ इन टेक्स्ट 1.6, सॉलिड A is very hard
electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? Batao. Metallic solid. Good. Metallic crystalline solid. Very, very good. Next, ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. Explain. Because there is no free Very ions good. molten. Very good. Due to the absence of free charge. Due to the absence of free charge or free electrons. बहुत अच्छा बात है सर. Next, what type of solids are electrical conductors, malleable and as well as ductile? Metallic solid. Metallic Metallic. crystalline solids. बहुत ही अच्छा बात है. Very, very good. Now we will move ahead. अब हम लोग देखेंगे what is the meaning of crystal lattice, what is the meaning of unit cell, what is the meaning of a lattice point, what is the meaning of void. ये सारे चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे. ओके, अब क्रिस्टल लैटिस देखिए सर, मैं अगर कोई भी एक सॉल्ट का एग्जांपल अगर लूंगा तो हम लोगों को पता है दैट this salt exists in the form of crystal structures. Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. घर में जो कॉमन सॉल्ट है हमारे पास उसको ही देख लो सर, हमें क्लियरली दिखता है कि वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है. हाँ कि नहीं? ढेर सारे क्रिस्टल्स दिखते हैं हम लोगों को. Yes. Okay. So now once we have known about this, they are present in the form of crystals. तो ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, वो पूरा अरेंजमेंट का जो स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. ओके, अब जो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा लैटिस ड्रॉ किया, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया. अब क्या ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैं ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके ये एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखो, अभी जो मैं ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूं, क्या मैं ये एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके इसको अगर मैं रिपीट कर देता लेफ्ट में, ऊपर में, डायगोनली, राइट में, हर जगह अगर मैं इसको रिपीट कर देता, क्या मुझे यही सेम बड़ा वाला यूनिट मिलता कि नहीं मिलता? Yes, sir. तो एनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर बनाने के लिए एक छोटा यूनिट जिसको पूरा 3 डायमेंशंस में रिपीट करने से अगर मुझे पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है, then this smallest unit is called as nothing but our unit cell. देखो डेफिनेशन बता रहा हूं, अच्छे से समझिए. The smallest unit which can be repeated in all the 3 dimensions in order to get the complete crystal lattice, that smallest unit is called as nothing but a unit cell. That smallest unit can be called as a unit cell. कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. No, sir. ओके, देखो जिसको समझ में नहीं आया वो लोग ध्यान से देखिए. से फॉर एग्जाम्पल मेरे को बनाना है एक प्रिज्म, इस टाइप का एक प्रिज्म बनाना है, इस टाइप का एक प्रिज्म बनाना है मुझे. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल. तो बताओ मुझे इतना बड़ा प्रिज्म बनाने के लिए क्या मैं एक ट्रायंगुलर शेप का एक छोटा सा यूनिट को लेके उसको पूरा 3 डायमेंशंस में, मतलब ऐसा ट्रायंगुलर यूनिट बार बार रखते हुए मैं अगर अरेंज करते जाऊंगा तो मुझे ये पूरा का पूरा प्रिज्म मिल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो वो Yes, जो sir. छोटा सा एक ट्रायंगुलर लैमिना यूनिट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक यूनिट सेल बोलेंगे. अब समझ में आया? Yes. Yes, sir. It is the smallest 3-dimensional unit which can be repeated in all the 3 directions. Which can be repeated in all the 3 directions in order to get the crystal lattice. उसी को हम लोग बोलते हैं unit cell. It is the smallest unit. Okay? अब देखिए
क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। चलिए टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, क्या है ये समझ में आ जाएगा। ओके, उससे पहले एनी सिंगल पॉइंट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, that may be ion, that may be atom, that may be molecule, that may be polar molecule, that may be metal, that can be anything। अगर वहां पे एक constituent particle present है तो उस particular place को हम लोग बोलते हैं lattice point। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? lattice point बोलते हैं। सर lattice point is a point in the 3-dimensional space where a constituent particle is believed to be present। एक constituent particle जहां present होता है उसे हम लोग एक lattice point बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, you must have noticed that when tiles are placed to cover a floor, a repeated pattern is generated। हम लोग जब घर में टाइल्स लगाते हैं एक अच्छा सा पैटर्न के रिपीटेड पैटर्न में हम लोग अरेंज करते हैं, सारे टाइल्स को रैंडमली अरेंज नहीं कर देते हैं। तो हैव अ लुक हियर। If after setting tiles on floor, we mark a point at some location in all the tiles, center of the tile। मतलब देखो तो, अगर ये मेरा एक टाइल है, 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 ऐसे बहुत सारे टाइल्स हैं। तो इन सारे टाइल्स का अगर सेंटर को अगर हम लोग नोट कर देते हैं, ऐसे एक पॉइंट से अगर हम लोग नोट कर देते हैं सेंटर को, ओके, एंड सी द मार्क्ड पोजीशंस ओनली इग्नोरिंग द टाइल्स। तो टाइल्स को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इन मार्क्ड पोजीशन को अगर हम लोग देखेंगे, ओके, टाइल्स को इग्नोर कर देंगे, पूरा स्ट्रक्चर को, सिर्फ उनके सेंटर्स को देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ओनली बाय सीइंग देयर सेंटर्स एंड इग्नोरिंग द अदर पोजीशंस we obtain a set of points। This set of points is the scaffolding on which pattern has been developed by placing tiles। मतलब इन सारे पॉइंट्स को जनरेट ज्वाइन करने से हमें वो पैटर्न दिखेगा जिस पैटर्न में हमारा टाइल्स अरेंज हुए हैं। This scaffolding is a space lattice on which 2-dimensional pattern has been developed by developing structural units, by placing structural units on its set of points। Okay, that is tile in this case। Okay, तो इन सारे पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, इन सेंटर्स को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है? हमें बेसिक स्केलेटन मिलता है, जिस स्केलेटन के हिसाब से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। Okay, now the structural unit is called as basis or motif। तो ये जितने भी हमारे टाइल्स हैं उनके सेंटर्स को जो हम लोगों ने ज्वाइन किया, ये सारे सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चरल यूनिट हमें मिला उसी को हम लोग बोलते हैं मोटिफ। क्या बोलते हैं बेटा? मोटिफ, MOTIF। समझ में आया? कोई पॉइंट प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, अब ध्यान से देखिए। When motifs are placed on points in space lattice, a pattern is generated। In crystal structure, motif is a molecule, atom or an ion। A space lattice, also called a crystal lattice, is the pattern of points representing the locations of these motifs। मतलब ये जो points हैं, centers हैं, atom का, molecule का या कोई भी constituent particle का, इनको जब हम लोग 3-dimensional space में arrange कर देते हैं, जो structure हमें मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं crystal lattice। 3-dimensional space में जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं crystal lattice। तो अब देखिए, in other words, space lattice is an abstract scaffolding for crystal structure। When we place motifs in an identical manner on points of space lattice, okay, have a look what is happening, we get crystal structure। तो सिंपली आप लोगों को यही समझना है, सर मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो मेरे लैटिस पॉइंट्स का, मतलब मेरे मोटिव्स का रेगुलर अरेंजमेंट इन द 3-dimensional स्पेस मुझे क्या दे देगा? मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। A 2-dimensional lattice and a hypothetical 2-dimensional crystal lattice structure obtained by placing motifs in 2-dimensional lattice, okay,
आर फिगर 1.5 पीछे जो दिया हुआ था. स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस. फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर प्लेस लैटिस ए एंड लैटिस बी. देखो अभी क्या हो रहा है, मेरे पास जो मेरा लैटिस पॉइंट्स हैं उनको एग्जैक्टली एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर ऐसे में अरेंज करता हूं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल मिलता है मुझे. बट वही अगर मैं एक के बीच में एक, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां एक, फिर इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पे एक, इन दोनों के बीच में गैप में जो है वहां एक, ऐसे ऐसे अगर अरेंज करूंगा तो ये जो क्रिस्टल लैटिस मिलेगा ये अलग है, ये जो क्रिस्टल लैटिस मिलेगा ये अलग है. क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा ये लैटिस का अरेंजमेंट अलग है और ये लैटिस का अरेंजमेंट अलग है. पता चल रहा है कि नहीं सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब देखिए यहाँ पे इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स स्पेस लैटिस इज अ 3-dimensional array of points. ओके आईपी जो लोग पढ़ रहे होंगे एरे वो लोग पढ़े होंगे. ओके अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डाटा एरे में हम लोग बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेस लैटिस को हम लोग एरे ऑफ पॉइंट्स. द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय associating structural motifs with lattice points. Each repeated basis or motif has same structure and same spatial orientation as other one in a crystal. The environment of each motif is same throughout the crystal lattice except for on the surface. Now don't worry about all these points. आगे जाके तुम लोगों को ये सारे और डिटेल में समझ में आएगा. Don't worry about them. Just अभी जो ये दे रहा है बस यही हम लोगों को याद रखना है. Following are the characteristics of crystal lattice. देखते हैं क्या है. Each point in a lattice is called as a lattice point or a lattice site, जो कि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं. Next, each point in crystal lattice represent one constituent particle, which may be an atom or a molecule or an ion. मैं तो ऑलरेडी बता दिया. Sir, crystal means lattice point का मतलब क्या था? It is a point in 3-dimensional space where a constituent particle is existing. It is a point in 3-dimensional space where a constituent particle is existing. समझ में आया? Yes. Next क्या बोल रहा है? Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग वही किए सर. ध्यान दीजिए केमिकल बॉन्डिंग में, ध्यान दीजिए सेंटर एक एटम था हमारे पास सेंटर में और उसके बाद एक एटम अरेंज हो गया यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम ऊपर में, एक एटम नीचे में. इसका स्ट्रक्चर बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? इसका स्ट्रक्चर बताने के लिए इनके सेंटर्स को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया था. इनके सेंटर्स को हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था तब हम लोगों को पता चला अरे ये तो क्या है, ये तो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. हाँ तो स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करने के बाद ही हम लोगों को ये पता चला था. तो उसी तरह से यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हमारे पास जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं उन सारे लैटिस पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने से आपको ज्योमेट्री ऑफ द कंप्लीट लैटिस आपको पता चलेगा. क्या अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now moving ahead. We need only a small part of the space lattice of a crystal to specify crystal lattice completely. अभी मैंने बताया था अगर मेरे पास एक क्यूबॉइडल क्रिस्टल लैटिस है, एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस है जो कि क्यूबॉइडल है, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस इन दिस वे, तो इस पूरा लैटिस को बनाने के लिए मुझे इतना बड़ा लैटिस लेने की जरूरत नहीं है. मुझे एक छोटा सा क्यूबॉइडल यूनिट अगर मैं ले लूंगा और उसको अगर मैं रिपीट कर दूंगा इन 3 डायमेंशनल्स, दैट इज इनफ. और ये छोटा सा यूनिट को मैंने क्या बुला दिया था? यूनिट सेल बुलाया था. यस तो यहाँ पे वही वो बोल रहा है. We need only a small part of the space lattice in order to specify the crystal lattice completely. This small part is called as the unit cell. तो मैं क्या बोलूंगा? यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या मैंने क्या बताया? It is the smallest part of a unit cell which when repeated in all, it is the smallest part of the crystal lattice which when repeated in all the 3 dimensions gives us the complete crystal lattice.
ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। समझ में आ गया? Yes, sir. Normally that Yes, cell sir. is chosen which has perpendicular sides of shortest length, and one can construct entire crystal lattice by translational displacement of one unit cell in 3 dimension। तो आप लोगों को फिजिक्स में ऑलरेडी पता है ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन Yes, क्या sir. होता है, एंड Yes, sir. ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन क्या होता है, हम लोगों को सब चीज पता है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को वो पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने का बताया था, राइट। पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ट्रायंगुलर लैमिना को ट्रांसलेशनली, मतलब आराम से साइड बाय साइड आप लगाते गए और आप लोगों को पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, चलो। फिगर 1.7 shows the movement of a unit cell of 2-dimensional lattice to construct the entire crystal lattice। तो ये क्या किया, ये एक यूनिट सेल है तो ट्रांसलेशनली यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां साइड बाय साइड यूनिट सेल्स लगाते गए, तो हम लोगों को एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिला। ओके, तो यूनिट सेल को कैसे रिपीट करना है, ट्रांसलेशनली रिपीट करना है, मतलब एक एक ब्लॉक आगे ले जाते तुम लोग उसको एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बना सकते हो। साइड बाय साइड यूनिट सेल को अरेंज करते जाना है। जैसे मैं ट्रायंगुलर लैमिना बताया था, इसके साइड में जस्ट एक और, इसके साइड में जस्ट एक और, इसके साइड में जस्ट एक और, इस तरह से अरेंज करते जाओ, आप लोगों को पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। समझ में आया? Yes. Yes, The sir. two dimensions, a parallelogram with side length A and B and an angle R between these sides is chosen as unit cell। तो देखो, तो मैं ये A B R में नहीं बताऊंगा, मैं तुम लोगों को एक और तरीका बताऊंगा, जिससे हम लोग कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस को 100% इमेजिन कर सकें। तो देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, देखिए ध्यान से देखिए। Say this is my x-axis, this is my negative x-axis, this is my positive y-axis, this is negative y-axis, okay, this is my z-axis and this is my negative z-axis। सबको ये दिख रहा है? Yes, sir. Now tell me, अगर एक पॉइंट है 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पे, यहां पे, इस पॉइंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये चीज आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी बताया हूं क्लास में, याद कीजिए। मैं क्या किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया। मुझे किसी ने बोला एक ब्लाइंड पर्सन है, उसको यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचना है। मैंने क्या बोला, अरे सुनो एक काम करो, अलोंग द एक्स एक्सिस 3 यूनिट आगे बढ़ो, चलो बढ़ गया। अब अलोंग द वाई एक्सिस 4 यूनिट आगे बढ़ो, चलो मैंने बढ़ गया। अब बोल रहा है अलोंग द जेड एक्सिस 2 यूनिट आगे बढ़ो, अलोंग द जेड एक्सिस 2 यूनिट बढ़ गया, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. Yes. तो मतलब मैं 3 पैरामीटर्स A, B, C, वेयर A इज अलोंग एक्स एक्सिस कितना लेंथ है, B अलोंग वाई एक्सिस कितना लेंथ है, C अलोंग जेड एक्सिस कितना लेंथ है। अब एक और चीज भी मैं डिफाइन कर सकता हूं, ध्यान से देखिए। इस पॉइंट का, ओके, इस गिवन पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये गिवन पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंड ये गिवन पॉइंट जो है ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। मतलब अल्फा बीटा गामा, मतलब ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। अगर ये 6 पैरामीटर में डिफाइन कर देता हूं, तो मैं कोई भी क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकता हूं। कैसे सर, कैसे? देखिए, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबॉइड है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर दूंगा, अरे देखो बेटा, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c है, लेकिन एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ओके, मतलब a b c तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग है, लेकिन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये एंगल भी 90 डिग्रीज, ओके, ये एंगल भी 90 डिग्रीज, ये एंगल, सारे एंगल्स 90 डिग्रीज। तो
इन दिस वे कोई भी क्रिस्टल लैटिस को तुम डिफाइन कर सकते हो बाय डिफाइनिंग 6 पैरामीटर्स, दैट इज ए बी सी अल्फा बीटा गामा। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, राइट। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं 6 फंडामेंटल okay parameters which can define any given unit cell, which can define any given unit cell। okay, तो आज आप लोग यहां तक अच्छे से पूरा पढ़िए। ओके, इसके आगे जो है हम लोगों का प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। और दूसरा चीज, जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों को बीचों बीच कुछ डाउट आ रहा है, ओके, इफ यू गो टू द रिसोर्सेस, मतलब आपके इस पेज में वाइज ऐप में अंदर में रिसोर्सेस करके एक टैब है, आप लोग अगर वहां जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को इमीडिएटली आज का लेक्चर भी दिख जाएगा। हर दिन का लेक्चर वहां पे रिकॉर्डेड होके रहेगा। तो जो पिछली बार आप लोग बार बार बोलते थे सर ये फिर से रिपीट कर दीजिए, वो फिर से रिपीट कर दीजिए, वो चीज आप लोग जितने बार चाहो उतने बार उस लेक्चर को सुन सकते हो। तो मैं चाहता हूं उसका अच्छा सा फायदा आप लोग उठाएंगे, बार बार उस चीज को पढ़ेंगे। मैंने जब भी जो भी पढ़ाया वो रिकॉर्डेड होके है, सिंपली ऐप निकाल के आप लोगों को आराम से पढ़ना है। कर लेंगे सर? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक सब कुछ आप लोग पढ़ लेंगे और हम लोग मिलेंगे कल। और कल हम लोग प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या है वो देखेंगे। उससे पहले आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है यहां तक नोट्स अच्छे से कंप्लीट करना, और उसके साथ साथ ओके ऑल द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके, एक टेबल बना के, ओके, जो टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में है, ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके अंदर कितने टाइप्स हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, उनका एग्जाम्पल्स कौन से हैं, क्या वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की नहीं कर सकते, ये सारी चीजें अपने टेबल में हॉरिजॉन्टली, अपना टेबल नोटबुक को ऐसे मोड़ के हॉरिजॉन्टली एक अच्छे से टेबल बना के उसका मुझे व्हाट्सएप में भेज दोगे। समझ में आ गया होमवर्क? Yes, sir. नोट्स एंड एज वेल एज दैट, तो अच्छे से खत्म करके भेजोगे। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने मेरे को होमवर्क भेजा है, तो बाकी लोगों का होमवर्क मुझे बहुत जल्द मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय। वेलकम वेलकम।